Om Shri Sai Ram, offering our humble and loving salutations at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan. It gives me immense pleasure to introduce our speaker for the 60th edition of this Samarpan, Shri Anup Saxena. Shri Anup Saxena has been an ardent devotee of Bhagwan for over 30 years. He is actively involved in Seva activities at the Sri Satya Sai Seva organization, holding several Prashant, we are not able to hear you clearly at all. Sorry. It will be louder. Yeah. Sorry. Yeah, is it better now? Sairam? Yes, better. Go ahead. Okay. Yeah. Om Shri Sairam, offering our humble and loving salutations at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan. It gives me immense pleasure to introduce our speaker for the 60th edition of this Samarpan, Shri Anup Saxena. Shri Anup Saxena has been an ardent devotee of Bhagwan for over 30 years. He is actively involved in Seva activities at the Sri Satya Sai Seva organization, holding several important positions at the Samiti, district, state, and national levels. He is currently the zonal president for West Zone of India, which includes Goa, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, including Mumbai metropolitan region. Prior to this, he has been the state president of Mumbai metropolitan region. In his personal and professional life, Sri Anup Saxena is an engineering and management graduate by qualification. He is the founder of Ambe International, one of the topmost recruitment and manpower solutions company in India. With a professional experience spanning over 40 years, Sri Anup Saxena is currently a managing director of a group of companies dealing in HR consultancy, training, skill development, and manufacturing. Sri Anup Saxena has spearheaded several projects at Sri Satya Sai Seva organizations at the state as well as the zonal level, like Prashanti Seva, mobile Medicare projects, Bal Vikas activities, and disaster management training. He has also pioneered the vaccination drives held at various places in Maharashtra during the COVID-19 pandemic. He is a mellifluous bhajan singer and is loved for his shayari and simple yet profound anecdotes. A loving and warm personality, he truly embodies Bhagwan's teaching, love all, serve all. Now, I request Sri Anup Saxena to kindly share his experiences with all of us. Sairam. Thank you, Prashant. आप सबके हृदय में बसने वाले हम सबके आराध्य परम पूज्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में कोटे कोटे नमन। आज के साईं समर्पण टॉक में जो भी साईं संस्था के मेरे साथी, मेरे भाई बहन, देवियों और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और मेरा प्यार भरा साई राम। भगवान बाबा के चरणों में अर्पित है कि आकाश, धरती और समंदर, आकाश, धरती और समंदर, जर्रे जर्रे में तू है। आकाश, धरती और समंदर, जर्रे जर्रे में तू है। हर सांस, हर धड़कन में तू है। सृष्टि के कण कण में तू है। साईं, जब जब तेरी इनायतों पे नजर जाती है, मेरी आंखें भर भर आती हैं। जब जब तेरी इनायतों पे नजर जाती है, मेरी आंखें भर भर आती हैं। तू दे रहा है इस कदर, साईं, तू दे रहा है इस कदर कि हाथ उठने के पहले ही झोली भर जाती है। भाइयों और बहनों, जब मुझे कहा गया कि मुझे आज साईं समर्पण में
बोलना है, तो मैं बड़ा सकुचाया, क्योंकि मेरे लिए ये इमेजिन करना ही मुश्किल था कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी समर्पण टॉक्स सुने हैं वो सब उन शख्सों के थे जिनका बाबा के साथ बहुत सानिध्य रहा, जो बाबा के बहुत नजदीक रहे, जिनको बाबा से डायरेक्ट इंटरेक्शन मिला, जिनकी बाबा से डायरेक्ट बात हुई, जिनको बाबा से डायरेक्ट इंटरेक्शन मिला, बाबा के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले, इंटरव्यूज मिले। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने पहले भाई प्रशांत को मना किया कि नहीं, तुम किसी और को चुनो, मैं इसके लिए सही इंसान नहीं। लेकिन उसके बाद आषाढ़ी एकादशी का दिन था और मेरे पास फिर से भाई प्रशांत का मैसेज आया कि नहीं, हमारी साइंस समर्पण टीम ने डिसाइड किया है कि आप ही इस बार हमारे साइंस समर्पण में बोलेंगे। तो मैंने इसको भगवान बाबा की इच्छा समझा, उनकी आज्ञा समझा और आज के समर्पित मौजूद हूँ। जो कुछ मैंने बाबा के चरणों में सीखा, चरणों में पाया है, वो समर्पित करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे आज का ये समर्पण टॉक देना है, तो मैंने अपने जीवन की किताब पूरी घुमाकर देखी और उसके बाद जैसे जैसे पन्ने घुमाए वैसे वैसे मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ तो भगवान ने जीवन भर अनेकों चमत्कार किए। मेरे साथ भगवान ने एक शिल्पी की तरह मेरे जीवन के कण कण को तराशा है और मैंने जब इनको लिखना शुरू किया तो मेरे खुद के लिए इतना बड़ा रेवलेशन था कि मैं आज बयान नहीं कर सकता। भाई और बहनों, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर ग्वालियर में हुआ, एक संभ्रांत परिवार में हुआ, जहां मेरी माँ काफी रिचुअलिस्टिक थी, काफी रिलीजियस थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। मेरी बड़ी बहन के बाद 5 साल तक मेरी माँ को कोई दूसरी संतान नहीं हुई, तो मेरी माँ ने पूजा पाठ करवाई, एक देवी के मंदिर में हवन करवाया और ऐसी मान्यता है हमारे परिवार में कि उसके प्रसाद से मेरा जन्म हुआ। तो ये पहला स्टेप था भगवान का कि जन्म से पहले ही वो मेरे पास आ रहे थे। देवी माँ का हमारे घर में प्रवेश हो चुका था। देवी माँ हमारी कुल देवी की तरह से पूजी जाने लगी। हमारे घर के पास ही एक काली माता का मंदिर था, वहां पर हर तरह की मान्यता होती थी। वहां की जो पुजारिन थी वो एक सिद्ध महिला थी और उनके गाइडेंस से हमारे घर के सब छोटे और बड़े फैसले लिए जाते थे। मैं भी इसी वातावरण में बड़ा हुआ। देवी की पूजा मेरे भी जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। रोज मंदिर जाना, पूजा करना, प्रार्थना करना, आरती करना, माता का श्रृंगार करना, ये सब मेरी दिनचर्या में शामिल था। और ये करते करते जीवन के हर फैसले, वो जो पुजारिन थी उनको हम गुरुमाई कहेंगे कन्वीनियंस के लिए, तो गुरुमाई की गाइडेंस लेकर जीवन के सारे बड़े फैसले होते थे। हमारे पूरे घर में उनकी मान्यता थी। इंजीनियरिंग करने के बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। यहाँ आकर मैंने एक फर्म में नौकरी कर ली। मेरी वाइफ भी एक रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस परिवार की थी। उनके घर में भी पूजा पाठ होता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था उस वक्त तक कि सत्य साईं बाबा नाम की कोई हस्ती है। हालांकि मुझे ये बहुत बाद में मालूम पड़ा कि मेरी मदर लॉ, जो मेरी सासू माँ थी, वो बाबा को मानती थी और भोपाल के अंदर जो सत्य साईं सेंटर है वहां की सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। जिंदगी बिताते रहे। मेरे घर में 2 संतान हुई। मेरा बेटा पहला है, उसके 3 साल बाद मेरी बेटी हुई और रहा था। बॉम्बे आने के बाद भी
कोई भी फैसला लेना होता था तो ट्रंक कॉल पे ग्वालियर बात करते थे, गुरु मायू की आज्ञा लेते थे, उनसे गाइडेंस लेकर के जिंदगी आगे बढ़ती गई। तभी अचानक मेरी बेटी बीमार पड़ी और ये हमारे लिए घर में एक चिंता का विषय था, क्योंकि बहुत इलाज कराया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु माई की आज्ञा भी ली, उनके भी किए, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब मेरी मदर इन लॉ ने मेरी वाइफ के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि सुना है कि सत्य साईं बाबा के पास एक बार ले जाओ बेटी को, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी वाइफ जानती थी कि मेरी आस्था काली माता में है, गुरु माई में है, इसलिए वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिवोशन हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिलीफ हो जाता था। इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरा गुरु तेरा गुरु ये सब बात बढ़े, इसलिए उन्होंने मुझे कभी ये चीज नहीं कही। उसके बाद एक मिरेकल हुआ मेरे साथ। किसी फंक्शन के सिलसिले में भोपाल जाना हुआ। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों भोपाल गए और 4 दिन के लिए गए थे। और ये वो समय था जब टेलीफोन्स लैंडलाइन से होते थे, मोबाइल नहीं होता था, कंप्यूटर्स नहीं होते थे। भोपाल के लिए सिर्फ इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट चलती थी और उसके लिए बहुत पहले से बुकिंग करानी पड़ती थी, क्योंकि इतना रश होता था। तो हम लोगों ने अपना रिजर्वेशन किया था, जाने का भी आने का भी, और भोपाल चले गए। वहां 4 दिन के लिए हम गए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे पे प्रेशर डालना शुरू किया कि मैं उनके साथ सत्य साई सेंटर में जाऊं। उसके पहले बॉम्बे में हमारे सर्कल में एक सज्जन थे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो विभूति निकाला करते थे और उनसे ही मुझे मालूम पड़ा कि सत्य साईं बाबा के नाम की कोई हस्ती है जो विभूति निकाल कर लोगों को देती है। तो वो कहा करते थे कि ये तो एक मैजिशियन है और अपने आप को भगवान बताते हैं। देखो, मैं भी निकाल सकता हूँ विभूति, और विभूति निकाल करके वो दिया करते थे। और उन्होंने चैलेंज भी किया था, न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल वगैरह भी छपा था जिसमें बताया था कि उन्होंने सत्य साईं बाबा को चैलेंज किया है। तो मेरे मन में जो सत्य साईं बाबा की एक मूर्ति बनी थी, एक इमेज बनी थी, वो थी एक महज जादूगर की, एक मैजिशियन की। तो इस बैकग्राउंड से मैं भोपाल में पहुंचा। वहां पर मेरी मदर इन लॉ ने जब मुझे बोलना शुरू किया कि आप चलिए और एक बार चलिए कम से कम सेंटर में, तो मैं टालता गया, क्योंकि मैं, वो इतनी बड़ी थी मुझसे, मैं नहीं उनको चाहता था कि उनका दिल दुखे, और वो भले के लिए ही कह रही थी। तो मैं किसी तरह से टालता गया। आखिर दिन आ गया, जिस दिन शाम को 7 बजे की फ्लाइट से हमें लौटना है। सवेरे सब मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं, एक दिन और रुक जाइए। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे सारे साले और सालियों को तैयार किया कि किसी तरह से मैं एक दिन और रुक जाऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप एक दिन रुक जाएं तो मैं आपको साई सेंटर लेके चलूंगी और आप इस बार ना नहीं कह पाएंगे। तो मैंने भी उन्हें टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, क्योंकि मैं जानता था टिकट चेंज नहीं हो सकता, इतना मुश्किल से टिकट बुक होता था। तो मैंने कहा ठीक है, अगर एक दिन मैं रुक गया और मेरा टिकट आपने कल के लिए चेंज करा दिया तो मैं कल साई सेंटर चला चलूंगा। उस दिन सैटरडे का दिन था, मुझे अभी तक याद है। इंडियन एयरलाइंस का शहर में ऑफिस होता था, वहां पर 2 बजे ऑफिस बंद हो जाता था और सारा स्टाफ जो है वो एयरपोर्ट चला जाता था फ्लाइट को हैंडल करने के लिए। अब 2 बजे के करीब की ये बात है, जबकि ये बात हो रही है हमारी कि टिकट कल का अगर हो जाए तो मैं रुक जाऊंगा। तो मेरी मदर इन लॉ ने बड़ा फोर्स किया मेरे साले को कि किसी तरह से तुम जाओ इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस में और ट्राई करो। उन्हें बड़ा भरोसा था कि ऐसा हो जाएगा और मुझे पूरा भरोसा था कि ऐसा नहीं होगा। मेरे साले ने कहा ऐसा करते हैं, फोन करके ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम था कि ऑफिस तो बंद हो गया होगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने फोन किया
और दूसरी लाइन पर कोई फोन उठाता है। जिसने फोन उठाया वो मेरे साले का दोस्त था और वो उनसे कहता है कि अरे तेरे को कैसे मालूम कि मैं इस वक्त ऑफिस में हूं? मैं तो ऑफिस बंद हो गया था, 5 मिनट के लिए कोई कागज लेने के लिए ऑफिस में आया और इस वक्त तेरा फोन आता है। तो मेरे साले ने कहा कि यार देख, ये प्रॉब्लम है, मेरे जीजाजी आए हुए हैं और वो कल जाना चाहते हैं, उनकी आज शाम की फ्लाइट है, तो कोई बंदोबस्त हो सकता है क्या? 3 टिकट चाहिए, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। तो उसने कहा कि यार तेरे को मालूम है टिकट की हालत क्या खस्ता है? उसने कहा देखना जरा कुछ हो सके तो उसने उस वक्त हैंड रिटन लिस्ट होती थी, वो लिस्ट निकाल कर देखी तो देखा कि उसी दिन 3 टिकट कैंसिल हुए थे। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? मैंने तो उस वक्त इसको इत्तेफाक माना। वो दौड़ के गए, जाकर के टिकट के ऊपर उस वक्त स्टिकर लगता था, नई फ्लाइट का स्टिकर लग गया, दूसरे दिन की फ्लाइट थी। उस दिन तो हमने खूब पार्टी वार्टी मनाई। दूसरे दिन सवेरे, जैसा मैंने अपनी मदर इन लॉ को प्रॉमिस किया था, तो मैंने कहा चलिए मैं आपके मन रखने के लिए मैं सेंटर चलता हूँ। मैंने सोचा कि 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जाऊंगा और लौट आऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं और मेरी वाइफ सत्य साई सेंटर में जाते हैं। वहां बाबा के बड़े बड़े फोटो लगे हुए। आप सोचें कैसा वातावरण था, मंत्र मुग्ध हो गया मैं। भीनी भीनी खुशबू, गायत्री मंत्र चल रहा है, लक्षार्चनम हो रहा है, भजन हुए। मैं जो 5 मिनट का सोच के गया था, 1 घंटे वहां बैठा रहा, मुझे नहीं मालूम मेरा समय कैसे निकल गया। एक ऐसी जिज्ञासा जागी कि मुझे लगा कि इस शख्स में कोई चीज है। मैं सत्य साईं बाबा को अभी शख्स ही समझ रहा हूं, भगवान समझना तो बहुत दूर की बात है। मैं उनको अभी तक शख्स मान रहा था, लेकिन जिज्ञासा जान गई थी कि भाई इनके बारे में कुछ और पता लगाना है, इनके पास जाना है। मैं वहां से कुछ साई लिटरेचर लेके, विभूति लेके घर आता हूं। शाम की फ्लाइट पकड़ करके हम तीनों जने बॉम्बे वापस आ जाते हैं। बॉम्बे आकर बहुत जिज्ञासा हो गई थी कि किसी तरह सत्य साईं बाबा के पास जाना है। और वो कहते हैं ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए आपके साथ लग जाती। मैं यहां पर 4 लाइनें कह दूं अगर आप लोग कहें तो, कि साईं आए हमारे जीवन में, साईं आए हमारे जीवन में, बात बन गई। साईं आए हमारे जीवन में, बात बन गई। बिखरी हुई जिंदगी अचानक संवर गई। राह मिल गई, चाह मिल गई, जीवन जीने की वजह मिल गई। भाइयों और बहनों, यहां आने के बाद मैंने अपने सर्कल में काफी लोगों से पूछा, पर कोई नहीं बता पाया कि साई सेंटर कहाँ है, कहाँ एक्टिविटीज होती हैं। और मैं बड़ा परेशान था कि मैं किस तरह से बाबा से मिलूं। मुझे लगता था जैसे बाबा कहीं मिलेंगे मुझे, किसी धूनी पे बैठे हुए कहीं पर किसी आश्रम में मिल जाएंगे। एक दिन अचानक मैं टीवी देख रहा था और टीवी के नीचे उस समय ये केबल ऑपरेटर्स जो हैं एक छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट की स्लाइड्स चला देते थे। तो मैं नॉर्मली उसको कोई इग्नोर करते हैं हम लोग, तो एक स्लाइड देखी मैंने जिसमें लिखा था कि सत्य साईं बाबा विजिटिंग बॉम्बे एंड दर्शन विल बी हेल्ड एट कूपरेज एट कोलाबा ऑन सो एंड सो डेट। बस मैं उठ के बैठ गया, टीवी बंद कर दिया, लग गया पता लगाने के लिए किस तरह से मैं वहां दर्शन कर सकूं। जैसा भगवान की इच्छा थी, वहां के जो लोकल डीसीपी थे वो मेरी जान पहचान के थे। उन्होंने कहा कि आ जाओ, मैं आपको बिठवा दूंगा। हमने इमीडिएटली अपनी मदर इन लॉ को खबर की कि इस तरह से हमको बाबा का बुलावा आया है, हम जा रहे हैं वहां पर। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक चिट्ठी लिख के ले जाओ और वो चिट्ठी भगवान की कोशिश में करना कि उनको दे दें। मन तो नहीं माना, कैसे चिट्ठी लिख करके देने को, अगर भगवान है तो सब जानेंगे ना कि क्या है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने कहा तो चिट्ठी लिख करके जेब में रख करके हम लोग, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए। बढ़िया दर्शन हुए, एकदम आगे की रो में बैठने को मिल गया क्योंकि डीसीपी के थ्रू गए थे। वहां बैठे बैठे
देखा कि बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं उनके दर्शन करने। मैं एक हस्ती को तो मैं जानता हूँ, नानी पालकी वाला, क्योंकि हम उनके लेक्चर सुना करते थे, तो उनको भी मैंने देखा। तो बड़ा इंप्रेशन पड़ा भगवान का मुझ पर कि जरूर ये ऐसी हस्ती है जिसके पास ऐसी ऐसी हस्तियां आती। लेकिन दर्शन बढ़िया हुए, लेकिन मेरी चिट्ठी मेरी जेब में ही रही, क्योंकि बाबा ने चिट्ठी नहीं ली। ऐसा कोई मौका ही नहीं था कि मैं चिट्ठी दे सकूं उन्हें। तो मैंने अपने डीसीपी फ्रेंड से कहा, यार कि मेरा तो काम पूरा नहीं हुआ, मैं तो चिट्ठी देने गया था। बोले कल धर्म क्षेत्र अंधेरी में दर्शन होंगे उनके, वहां चले जाओ। तो दूसरे दिन हम धर्म क्षेत्र के निकल पड़े। रास्ते में इतना रश था कि हमें बीच में ही अपनी गाड़ी छोड़ देनी पड़ी। किसी तरह से धक्कम धुक्की करते हुए हम धर्म क्षेत्र के गेट तक पहुंचे। इतनी भीड़ थी कि उन्होंने गेट बंद कर दिया था। एनीवे, वहां से हमें जलान मंडप में बाबा के दूर से बाबा के रोब के दर्शन हुए। तो दर्शन यहां भी हो गए। फिर भी चिट्ठी तो नहीं पहुंची। मेरी जिज्ञासा और जागी कि भाई किस तरह से चिट्ठी पहुंचे। मैं जो भी मिलता उससे बाबा के बारे में बात करता कि शायद इसको मालूम हो। तब तक मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था, नौकरी से निकल गया था, और बिजनेस भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा था। रिक्रूटमेंट का काम था, एचआरडी कंसल्टेंसी। बाहर से लोग विदेश से आते थे हमारे इंटरव्यूज करने के लिए। तो मेरे एक दोस्त, क्लाइंट भी थे, दोस्त भी थे, वो इंटरव्यूज लेने के लिए मेरे ऑफिस में आए। मैं उनसे बैठ करके लंच टाइम में बात कर रहा था। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आजकल यार मेरी बड़ी जिज्ञासा है, मुझे सत्य साईं बाबा से मिलना है। तो कहने लगे कि मैं उनके दर्शन करके आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, कैसे? बोले मेरा भाई जो है वो वृंदाश्रम में बेंगलोर में काफी एक्टिव है, वो आपको दर्शन करा देगा। मैंने कहा वाह, ये लिंक मिली। मैंने उनके भाई को उसी वक्त फोन मिलाया उनके सामने से ही, और उसने कहा ठीक है बाबा आजकल बेंगलोर में ही हैं, आप आ जाइए। हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट पकड़कर, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों जने बेंगलोर चले गए। चिट्ठी ले जाना नहीं भूले, चिट्ठी जेब में रख के ले गए। और उस वक्त तक ऐसी मान्यता हमारे मन में कि भाई किसी भी मंदिर में जाओ या किसी भी बड़े पहुंचे हुए पुरुष के पास या पहुंचे हुए व्यक्ति के पास जाओ तो कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। तो प्रसाद कैसे ले जाएं? उस वक्त आम का सीजन था, तो हम यहाँ से अल्फेंजो आम की एक पेटी रख के ले गए। वहां फ्रेंड थे, उनके ब्रदर, उसको भाई जी बोलते हैं। तो भाई जी शाम को हमारे होटल में आए और बैठ के हमारे साथ बाबा की पूरी कहानी सुनाई, बाबा की जीवन के बारे में, बाबा के प्रोजेक्ट्स के बारे में, बाबा ने जो जो काम किया था। मैं आज तक उनका आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बहुत कुछ बताया, मेरे माइंड को बहुत मोल्ड किया, बहुत चेंज किया बाबा के लिए। दूसरे दिन जैसा उनसे फिक्स किया था, हम लोग वृंदावन आश्रम पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने मेरे को सेकंड लाइन में जेंट साइड में बिठा दी, और उन्होंने ये बता दिया कि जब बाबा आए तो आप अपनी चिट्ठी ऐसे रखना ऊपर हाथ करके, और जब बाबा आए तो उनको चिट्ठी दे देना। ठीक है, मैंने वैसा ही किया, वैसा बैठ गया मैं चिट्ठी को लेकर के। भगवान की कृपा कि वो सीधा मेरे पास आए चल के, मेरी लाइन में आगे खड़े हो गए। अब ट्विस्ट है भाइयों, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, ऐसा प्यार जो जिंदगी में कभी नहीं पाया। मैंने रोना शुरू किया, मेरे आंसू नहीं थम रहे, मैं बर्फ की तरह जम गया, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मेरा दिल रुक गया, हाथ मेरा ऐसा का ऐसा उठा रह गया, और बाबा ने मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ करके लेटर मांगा। फिर भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, दम नहीं था कि मैं आगे कर सकूं, क्योंकि मेरे को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। और मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट लग रहा था कि मैं रो रहा हूं, एक आदमी होकर के मैं रो रहा हूं, और आजू बाजू वाले क्या कहते होंगे। मेरे बाजू में जो बैठा था उसने मुझे हिलाया, बोले बाबा तुमसे लेटर मांग रहे हैं, दे दो। और उसने ही मेरा हाथ आगे किया, और वो लेटर मैंने बाबा को दिया। लेटर लेने के बाद बाबा ने अपना रोब थोड़ा ऊंचा किया,
मैंने उनके पाद नमस्कार लिए। बाबा ने मटेरियलाइज करके विभूति दी, जो मुझे भी दी, मेरे बाजू वाले को भी दी। भाई और बहनों, ऐसा अथाह प्रेम, ऐसी फीलिंग जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुई थी। मैं एक अलग इंसान था। मैं वहां से लौटा, वाइफ को, बेटी को लेकर गाड़ी में बैठे हम, वो भाई जी भी हमारे साथ थे। जब हम चलने लगे तो मैंने उनको याद दिलाया, मैंने कहा भैया वो आम की पेटी रखी है पीछे, वो चढ़ानी थी ना, क्या हुआ उसका? तो कहने लगे देखो मैंने आप लोगों को बोला नहीं क्योंकि आपकी श्रद्धा थी, पर यहाँ पर ऐसे भेंट चढ़ाने का, कुछ प्रसाद चढ़ाने का कोई रिवाज नहीं है। मैंने कहा चलो फिर भी कोई बात नहीं, अब जब हम आए हैं, लेके आए हैं तो ट्राई करो। बोले ठीक है। उन्होंने गाड़ी रोकी, हमको गाड़ी में बिठाया और वो अंदर गए। अंदर जाके उन्होंने किससे क्या बात की मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन फिर वो दौड़े दौड़े आए और आकर के बोले आपकी पेटी मंजूर हो गई है। तो वो आम की पेटी लेके गए और आम की पेटी अंदर ले जा करके उन्होंने किसको दी मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक आम वापस लेके आए और बोले कि ये आप अपनी बेटी को खिला दीजिए। हम लोग होटल वापस आए, मैंने वो आम अपनी बेटी को बोला खा लीजिए। वो इतना डर गई थी क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा थी, हैवी मेडिकेशन में थी, तो इसलिए वो कुछ खा भी नहीं पाती थी ठीक से। लेकिन उसने उस दिन वो पूरा एक आम खाया और उसके बाद उसकी सुधार हुआ, उसकी सेहत में दवाइयां उसकी स्टेबलाइज हुई और हम लोग बॉम्बे वापस आ गए। भाई और बहनों, उसके बाद हम लोग धर्म क्षेत्र जाने लगे। हर संडे को हम लोग जाकर भजन सुना करते थे। हमारे घर के पास में अजूमल मेंशन में वाल्केश्वर में रहते थे हम लोग, वाल्केश्वर समिति के भजन और सारी एक्टिविटीज होती थी, उसमें हम लोग जुड़ गए। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों जने वहां जाके भजन करने लगे। भजन से मुझे विशेष लगाव था। बॉम्बे आने के पहले और बॉम्बे आने के बाद भी मैं स्टेज के ऊपर मोहम्मद रफी के, मुकेश के गाने गाया करता था, लेकिन फिर वो गाने जो है वो भजन में बदल गए और भजन रेगुलर तौर पे गाने लगा मैं। हमारे एरिया के भजन इंचार्ज सुरेश माविन कुरवे जी थे। एक जगह भजन में उन्होंने मुझे पिक किया और बोले कि तुम अच्छा गाते हो, मेरे साथ चला करो, मैं जो भी भजन में जाऊंगा तुम मेरे साथ आया करो। तो मैं उनके साथ भजनों में भी जाने लगा। कभी चीफ मिनिस्टर के यहाँ भजन हो रहे हैं, कभी किसी मिनिस्टर के यहाँ भजन हो रहे हैं। मेरी वाइफ और मेरी बेटी बाल विकास के गुरु बन गए। बाल विकास के क्लासेस शुरू हो गए। हमारे घर में भजन होने लगे। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे ग्रैंडफादर, ये सब हमारे साथ रहते थे वाल्केश्वर पर, और ये सब बाबा के डिवोटी हो गए। यहाँ तक कि मेरी सिस्टर सेंटा क्रूज में रहती थी, वो तक बहुत अच्छा भजन गाती थी, वो भी भजनों में जुड़ गई, उनके भी घर में, सब में। तो बाबा ने हमारे घर में एक साथ स्टॉर्म की तरह से एंट्री मारी। लेकिन हमारे घर में एक शख्स ऐसा था जो फिर भी डिवोटी नहीं हुआ, और वो था मेरा लड़का। इसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ भगवान ने एक और चमत्कार किया। मैं जिस बैकग्राउंड का था, उस बैकग्राउंड में यह मान्यता थी कि अगर कोई गुरु है तो वो आपको एक मंत्र देगा, आपको दीक्षा देगा। तो मैं सोचा करता था कि बाबा भी ऐसी कोई दीक्षा देंगे, बाबा भी कोई मंत्र बोलेंगे। लेकिन फिर मुझे बताया गया कि नहीं, ये बाबा उस तरह के बाबा नहीं कि जो आपको दीक्षा दे, जो आपके कानों में मंत्र फूके। लेकिन अब मेरी आस्था थी, मैंने उसको मन में दबा के रखा, मेरी बड़ी इच्छा थी। एक दिन बाबा सपने में आए और मुझे अपनी गोदी में लिटाया, एक बच्चे की तरह मुझे गोदी में लिटा लिया और मेरे कान में एक मंत्र बोला, जो मैं ऑब्वियसली उनके कहे अनुसार किसी से शेयर नहीं कर सकता हूं। लेकिन वो मंत्र आज भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं उसका जाप करता हूं। और शायद वो उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जनरली मुझे भी मालूम है कि बाबा, मैंने बहुत लिटरेचर में पढ़ा कि बाबा नहीं देते थे मंत्र, लेकिन शायद उनको मालूम था कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूं जहां मेरी ये मान्यता बनी हुई है, मेरे मन में ये बसा हुआ है
कि वो मुझे कोई मंत्र देंगे, तो इसलिए मेरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने वो मंत्र मुझे दिया। चूंकि भजन से मेरा लगाव था और भजन के चलते और भी एक्टिविटीज में मैं पार्टिसिपेट करने लगा। हम लोगों ने एक विलेज अडॉप्ट किया वाल्केश्वर समिति ने, और उस विलेज में हम लोगों ने एक आंगनबाड़ी का निर्माण किया जिसके अंदर की मैं काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। उसके बाद मैं जाकर के प्रशांति सेवा भी करता था, पुट्टपर्थी रेगुलरली जाना हो गया, घर में हमारे बाबा के जगह जगह फोटो लग गए, हमारी सारी रैक्स घर की बाबा के लिटरेचर से भर गई, और हमारा ये सफर चलता रहा। एक दिन मैंने अपने लड़के से पूछा कि बेटा, सब लोग जो है वो घर में बाबा को मानते हैं, आप क्यों नहीं मानते? तो उसने बात को टाल दिया। वो उसने अभी हमको बाद में बताया कि मुझे ये लगता था कि मेरे घर में सब लोग जो हैं किसी कल्ट के शिकार हो गए हैं, कोई बाबा के चक्कर में पड़ गए हैं, और वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, इसलिए उनको ये गवारा नहीं था, इस तरह की चीज को वो सुपरस्टिशन मानते थे, इसलिए उन्होंने उस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया। एनीवे, चलता रहा। इधर हमने भजन के मूवमेंट को लेके मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ कैसेट्स, ट्रैक्स बनाऊं। बाबा ने इंस्पिरेशन दी। तब तक मेरा संपर्क भाई गिरीश अत्रे जो पूना के हैं उनसे हो गया था। मेरे कजन ब्रदर जो प्रशांत सलिल, जो पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर के शागिर्द हैं, उनके साथ मिलकर और गिरीश अत्रे के साथ मिलकर हम लोग सुरेश वाटकर जी के साथ बैठे। हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम जो बाबा के भजन से, जो उस वक्त तक सिर्फ सुंदरम कैसेट्स के तौर पर मिलते थे, तो क्यों ना हम लोग एक कैसेट्स और इस तरह की सीरीज बनाएं जो कि फेमस सेलिब्रिटी सिंगर्स की आवाज में हो, ट्रैक के साथ हो, इंटरमिटेंट म्यूजिक के साथ में हो। तो सुरेश वाटकर जी को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को भी बहुत अच्छा आइडिया लगा, और इन लोगों ने मिलकर सहयोग से 108 गाने, ट्रैक्स तैयार किए, और 108 ट्रैक्स के ऊपर सारे म्यूजिक वर्ल्ड के सेलिब्रिटी सिंगर्स ने गाने गाए, भजन गाए, जिसमें सुरेश वाटकर जी ने स्वयं गाए, पंडित शिव कुमार शर्मा ने एक पूरा सीडी बनाया, शंकर महादेवन, हरिहरन जी, अनूप जलोटा जी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के कुमार शानू जी, शान, इन सब लोगों ने उसमें भजन गाए। ये सीरीज जब पूरे 10 सीडीज तैयार हुए तो इनको लेकर मैं और सुरेश वाटकर जी एक बार आषाढ़ी पर लेके गए। वो पूरा सेट बाबा ने उसको ब्लेस किया, उसको रिलीज किया, और हम लोग लौट कर उसको फिर हमने रिलीज किया, और ये बड़े पॉपुलर हुए ये भजन। और अभी भी उसके बाद में फिर वो पायरेटेड हो गए, तो हर जगह मिलने लगे, पुटपर्तियां बाहर, हर दुकान में आप वो सीडीज पा सकते थे। लेकिन पर्पस था कि भगवान के भजन मूवमेंट को एक नई दिशा मिल जाए, तो भगवान ने वो इच्छा हमारी पूरी कर दी। इधर मेरे पुत्र को इंजीनियरिंग करके एमएस जाने के लिए यूएस जाना पड़ा, मतलब उनकी इच्छा हुई और भगवान ने उन्हें भेज दिया। यूएस में जाकर एक संडे वो करीब 20 लोगों के साथ राफ्टिंग के लिए गए। वहां राफ्टिंग में करीब 4 बोट्स थी, एक के अंदर करीब 12 लोग थे, एक में 4 लोग थे, एक में 2 और 2, ऐसे करके ये लोग डिवाइड हो गए। इनको सबसे छोटी बोट मिली। इन्होंने जिंदगी में पहले कभी राफ्टिंग नहीं की थी, पहली बार राफ्टिंग कर रहे थे, और इनकी बोट, पानी बहुत तेज था, बहुत तेज बहाव था, बोट उलट गई। हालांकि ये लाइफ जैकेट पहने हुए थे, लेकिन फिर भी इतनी तेज बहाव में ये ऐसे करके लेटे हुए थे और बहे ही चले जा रहे थे। अब इन्हें लगा कि मेरा अंत समय आ गया।
इनको मालूम था कि आगे जाकर के वो नदी जो है वो नीचे करीब 10 से 15 फुट नीचे गिरती थी। तो ये समझ गए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब इन्हें ध्यान आया कि मेरे घर में सब लोग सत्य साईं बाबा को साईं राम करते रहते, तो मरता क्या ना करता। इन्होंने भी साईं राम कहना शुरू कर दिया। बहते हुए लेटे हुए हैं और साईं राम कहे जा रहे हैं। तभी सडनली एक हृष्ट पुष्ट शख्स आता है और इनको एक बच्चे की तरह से कॉलर से पकड़ के उठा लेता है और उठा करके इनको एक बोट में डाल देता है। इसके पहले कि ये समझते कि कौन है क्या है, उससे पूछते कि आप कौन हैं। उसने कहा कि आई हैव सम अदर थिंग्स टू डू, ही वेंट अवे। जब ये राफ्टिंग का पूरा सेलिंग खत्म हुई, ये जब वापस आए शोर पर, तो इन्होंने देखा कि जो 20 लोग ये गए थे उस 20 में वो शख्स नहीं था। तो ये कन्विंस्ड हुए कि हो ना हो ये सिर्फ और सिर्फ सत्य साईं बाबा थे जो इस शख्स के रूप में आए थे मुझे बचाने। और उस दिन भाइयों और बहनों, मेरी फैमिली के बचे हुआ एक इंसान भी बाबा के फोल्ड में आ गया। अब इसके बाद मेरे बेटे भी साईं राम कहने लगे। सैन फ्रांसिस्को में जो साई सेंटर था उसमें जाकर सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे और ये बाबा की असीम अनुकंपा, असीम कृपा हुई कि हमारे घर में हर कोई बाबा के फोल्ड में आ गया था। उसके बाद चार लाइनें बोलूंगा कि यादों के पन्नों से भरी है ये जिंदगी, यादों के पन्नों से भरी है ये जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है ये जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है ये जिंदगी। गौर से सोचोगे तो पाओगे कि बिन साईं बेमानी है ये जिंदगी, कि बिन साईं बेमानी है ये जिंदगी। उसके बाद मेरे बेटे की शादी हुई। मेरी जो बहू थी, डॉटर इन लॉ, वो भी एक स्पिरिचुअल परिवार से थी जो चिन्मय मिशन को मानते थे। मेरे बेटी की शादी भी जिनसे हुई वो भी महाकाल के भक्त थे और उनके घर में भी बाबा का कुछ डिवोशन था, क्योंकि उनके घर में भी मैंने बाबा की एक फोटो देखी। और मेरी बेटी के साथ भी जिस वक्त उनकी शादी तय हो रही थी, क्योंकि वो बॉम्बे की रहने वाली थी और उनकी शादी जिससे होने वाली थी वो उज्जैन के रहने वाले थे, तो इसलिए मेरी बेटी बहुत खुश नहीं थी मन के अंदर कि उनको उज्जैन जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो भी गाइडेंस सीख की भगवान से, तो उनको ये गाइडेंस मिली कि नहीं, ही इज द राइट मैन फॉर यू। ऐसी ही गाइडेंस मेरे सन इन लॉ ने भी सीख की। तो वो जहां बैठे थे वहां बाबा का फोटो उनके सिर पे गिरा, तो उन्होंने उसको एज इंडिकेशन ऑफ गॉड ले लिया और शादी हुई। तो इस तरह से हमारे घर में जो दो नए मेंबर्स आए वो भी बाबा के ढांचे में ढल गए। उसके बाद मेरे बेटे के दो लड़कियां हैं, मेरे बेटी की एक लड़की है। तीनों बच्चे बाल विकास के बच्चे हैं। मेरी बड़ी जो ग्रैंड डॉटर है उसने बाल विकास का डिप्लोमा किया है, जो छोटी वाली है उसने सेकेंड ईयर में है बाल विकास में, और जो सबसे छोटी है मेरी बेटी की बेटी, उसने भी बाल विकास शुरू किया है। तो भगवान बाबा की असीम अनुकंपा हुई भाइयों बहनों मेरे ऊपर कि मेरे घर के हर मेंबर ने सत्य साईं फोल्ड के अंदर अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को मोल्ड कर लिया। 2000 तब तक मैं जोन, पहले समितिज जो हैं वो जोन्स में डिवाइडेड थी, तो मैं जोनल कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई थी और मैं वाल्केश्वर समिति, फोर्ट समिति, शिवाजी पार्क वर्ली, ये 4 समिति इसका कार्यभार संभालता था। तभी अचानक मालूम पड़ा, 2009 की बात है, कि बाबा महाराष्ट्र में आ रहे हैं
पूना में हटशी में मंदिर बना था, उसके इनॉग्रेशन के लिए बाबा ने डिसाइड किया कि वो आ रहे हैं। तब तक तो ये मालूम था कि बाबा सिर्फ पूना आएंगे और वापस चले जाएंगे। हालांकि ये बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था बॉम्बे वालों के लिए, लेकिन फिर भी ठीक है, सब हटशी भागने लगे। मुझे भी जिम्मेदारी दी गई वहां पर अकोमोडेशन की, क्योंकि वहां पर मंदिर के अलावा अकोमोडेशन कहीं नहीं थी। खाली एक चिन्मया मिशन का एक सेंटर था, चिन्मया विभूति के नाम से। उनके पास बहुत सारे रूम्स थे जो हमने पूरे ब्लॉक कर लिए, और उसके अलॉटमेंट का काम, वो सेवा मेरे को दी गई। वहां पर भगवान के अच्छे दर्शन हुए और सेवा करने को मिली। उसके बाद हम जब थे वहां पर तो मालूम पड़ा कि बाबा ने he has acceded to the request of devotees and he has agreed to come to Bombay. पहले मालूम पड़ा कि वो सिर्फ आधे दिन के लिए आएंगे, फिर मालूम पड़ा कि नहीं, आधे दिन नहीं, वो पूरे 2 दिन रहेंगे। तो वहां जो हम लोग गए हुए थे, शायद 4-5 दिन का सोच के गए थे, वहां से भागे, क्योंकि अगर बाबा बॉम्बे आ रहे हैं तो सारा इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ आकर पहले दिन जब बाबा आए तो आधे दिन का प्रोग्राम था। गोरेगांव में एक पब्लिक मीटिंग थी, वहां पर बाबा आने वाले थे। उसके लिए न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग का बड़ा ग्राउंड, एयर कंडीशन ग्राउंड बुक किया गया, मिल गया। बाबा की कृपा थी, क्यों नहीं मिलता। अब वहां प्रोग्राम क्या रखा जाए, तो पंडित शिव कुमार शर्मा से, जिनसे मेरा काफी क्लोज तालमेल हो गया था उस समय वो कैसेट्स के सिलसिले में, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने इमीडिएटली सोनू निगम से बात की और सोनू निगम ने तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, मैं बाबा के सामने परफॉर्म करूंगा। तो वो प्रोग्राम गोरेगांव में हुआ, वहां मुझे सेवा करने का मौका मिला। उसके दूसरे दिन प्रोग्राम ऐसा था कि बाबा धर्म क्षेत्र से निकलकर वर्ली में दर्शन देंगे और वर्ली से फिर सीसीआई में दर्शन देंगे। मेरी तो बाँचें खिल गई, क्योंकि दोनों सेंटर्स जोन 1 में आते थे और वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र था। तो मैंने कहा चलो, मेरे को अच्छी सेवा करने को अच्छे दर्शन मिलेंगे। लेकिन इतना आसान नहीं था। सीसीआई के अंदर इस तरह की मीटिंग की परमिशन नहीं मिलती थी। लेकिन फिर उनका चमत्कार कि हमने जब कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ठीक है, वहां के चेयरमैन जो है वो भी डिवोटेड थे, उन्होंने इमीडिएटली परमिशन दे दी। आउट ऑफ द वे जाकर के उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। इसी तरह जम्बोरी मैदान के अंदर भी उस वक्त यहाँ के चीफ मिनिस्टर बाबा डिवोटी थे, तो उनके इन्फ्लुएंस से जम्बोरी मैदान भी मिल गया। अब 3 दिन के अंदर हमें सारे वेन्यूज तैयार करने थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देने थे, स्टेज बनानी थी, रैंप बनाना था, क्योंकि बाबा उस वक्त व्हील चेयर पे आते थे। तो आप सोचें कि 3 दिन के अंदर, और बाबा इतने समय बाद बॉम्बे आ रहे थे, इसलिए यहाँ के लोगों में उस वक्त डिवोशन कूट कूट के भरा हुआ था। सब लोगों में कुछ भी कर गुजरने की इच्छा थी। जम्बोरी मैदान को जाकर जब मैंने देखा तो वहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे, कंकड़ पत्थर। वो ग्राउंड ऐसा था ही नहीं कि जिसपे आप चल भी सकें। वहां बाबा को लेके आना था। एक बिल्डर से जान पहचान थी, उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने एक अपना रोड रोलर दे दिया। रोड रोलर से वो पूरा ग्राउंड समतल करा, उसके ऊपर कारपेट लगाया और रात भर लोगों ने बैठ करके वहां पर तैयारी की, उस ग्राउंड को तैयार किया। रात भर लोगों ने खाना पीना सब छोड़ करके अपना तैयारी की, क्योंकि वहां पर खाली वर्ली के ही लोग नहीं थे, गुजरात से भी लोग आए, महाराष्ट्र के और प्रांतों से भी लोग आए और रात से आकर के कैंप कर रहे थे, क्योंकि बाबा का दर्शन इतने समय बाद महाराष्ट्र में हो रहा था। सीसीआई में तब भी काफी कुछ ऑर्गेनाइज था, क्योंकि वहां कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम होता था, तो कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, सब काम हो गया। लेकिन यहाँ जम्बोरी मैदान में हर चीज स्वयं करनी थी। लेकिन हमारे वर्ली के सेवा दल बड़े मुस्तैद थे, पूरे जोन 1 के लोगों ने लग करके रात भर के अंदर ग्राउंड तैयार कर दिया। सुबह मुझे फोन आता है और ऑर्गेनाइजर्स बताते हैं कि बाबा जम्बोरी मैदान नहीं आएंगे। भाइयों बहनों, आप सोचो कि मेरी क्या हालत हुई होगी। यहाँ पर हजारों लोग ऑलरेडी आकर जम्बोरी मैदान में बैठे हैं और उत्सुक हैं कि बाबा अब आएंगे। वहां मालूम पड़ा कि बाबा को 2 जगह और जाना है, 2 मिनिस्टर्स के घर विजिट करना है, इसलिए वो वर्ली नहीं आ पाएंगे, वर्ली को स्किप कर रहे हैं बाबा। अब मैं किसी को बता तो सकता नहीं था, मैंने खाली 2-4 आसपास में लोगों को बताया। वर्ली की जो कन्वीनर थे, जो अब नहीं है इस दुनिया में, गंगाराम जी,
उन्होंने कहा अनूप जी आप चिंता नहीं करो, बाबा कभी भी वर्ली के अंदर डिवोटीज को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। चलिए हम सब शिद्दत से प्रार्थना करते हैं। तो भाई और बहनों, हमने सबने बैठ के प्रार्थना शुरू कर दी। हम 4-5 लोग, सबको नहीं, किसको हम सबको बता ही नहीं सकते थे कि बाबा यहाँ पर नहीं आने वाले। हमने प्रार्थना करना शुरू किया। फोन आया कि बाबा ने कहा है कि मेरे डिवोटीज वर्ली में इंतजार कर रहे हैं मेरा, तो मुझे वर्ली तो जाना है। तो बाबा आएंगे वर्ली, लेकिन 5-10 मिनट के लिए बस ऐसे होते हुए गाड़ी से ही दर्शन देके निकल जाएंगे। मैंने कहा चलो बाबा आओ तो सही आप, क्योंकि एक बार आप आ जाओगे तो लोगों के अंदर ये सांत्वना तो हो जाएगी कि हमने बाबा के दर्शन कर लिए। वैसा ही हुआ, बाबा आए, बाबा की गाड़ी रुकी, हमको लगा कि अब तो ये दर्शन दे करके निकल जाएगी। हमने रास्ता बनाया हुआ था इस तरह से ग्राउंड में कि बाबा की गाड़ी आएगी और सबके सामने से होती हुई निकल जाएगी। बाबा उतरे, उतर के स्टेज पर गए और 5-10 मिनट नहीं भाई और बहनों, 1 घंटा वहां बैठ के उन्होंने सबको दर्शन दिए। बाबा ने कई लोगों से बात की, बाबा ने पाद नमस्कार दिए, आरती दी, भजन सुने। आप सोचिए कि डिवोशन किसको बोलते हैं, ये उस दिन मैंने देखा वहां के डिवोटीज के अंदर। और उस डिवोशन की मांग ये थी कि भगवान भी हिल गए, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम चेंज कर दिया, मिनिस्टर के घर जाना चेंज कर दिया और वहां आकर के पूरा 1 घंटा रुके रहे। उसके बाद शाम को सीसीआई में अच्छे दर्शन हुए। हमने एक तैयारी की थी कि जब बाबा ग्राउंड में आएंगे सीसीआई में, तब हम हजारों गुब्बारे गैस के भरे हुए छोड़ेंगे। मुझे कहा गया लोगों से क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, कहा बाबा देखने वाले आएंगे, गुब्बारे जा रहे हैं ऊपर। मैंने कहा भाई एक इच्छा हुई है तो कर लें दो। तो हमने तैयारी की और वो गुब्बारे छोड़े। आप विश्वास करिए भाई और बहनों, क्योंकि हमारी इच्छा थी, बाबा ऐसे ही देखते रहे जब तक कि लास्ट गुब्बारा नहीं चला गया ऊपर। तो ये श्रद्धा और भक्ति को भगवान कैसे पहचानते हैं और कैसे उसको आंसर करते हैं, ये उस दिन मैंने महसूस किया। बाबा की इस विजिट पे हम तृप्त हो गए थे। दूसरे दिन धर्म क्षेत्र में सवेरे बाबा के दर्शन होने थे उनके वापस जाने के पहले। तो हम धर्म क्षेत्र पहुंच गए। वहां जैसे ही पहुंचे तो मुझसे कहा गया कि तुम जल्दी से वापस जाओ। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले नहीं, जाओ, जाकर के कपड़े पैक करके और सीधा एयरपोर्ट पहुंचो। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। कहने लगे कि बाबा के साथ फ्लाइट में जाने का मौका तुमको मिल रहा है। भाई और बहनों, आप इमेजिन नहीं कर सकते अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। मैं भागा भागा गया, जाकर जो कुछ सामने दिखा उसको पैक करके मैं सीधा एयरपोर्ट भागा। वहां जाकर के फ्लाइट में बाबा के साथ पुट्टपर्थी के लिए ट्रेवल किया। जो फोटो समर्पण टीम ने आप लोगों को सर्कुलेट किया है, वो फोटो उसी फ्लाइट का है। पुट्टपर्थी जाकर दूसरे दिन हम लोग बाबा के दर्शन करने गए। बाबा ने सबके साथ सामने आकर के बोला वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, 3 बार बोला वेरी हैप्पी। सबको पाद नमस्कार दिया, विभूति दी और ये लेकर के हम लोग वापस आ गए। बाबा के जो मिरेकल्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि हमारा डिवोशन बाबा में रीएनफोर्स हो। इसलिए मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मिरेकल्स, जो अब मैं रियलाइज कर रहा हूं कि ये सब मिरेकल्स हमने देखे। जब मैंने भाई प्रशांत को बोला कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, मेरे साथ कोई मिरेकल हुआ ही नहीं, तब तक मुझे नहीं याद था, मालूम नहीं था कि इतने मिरेकल्स उन्होंने मेरे साथ किए जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप सोचें, मैंने वहां पर लिंगोद्भव देखा पुट्टपर्थी में। प्रशांति सेवा कर रहे थे उस समय हम लोग, महाराष्ट्र की सेवा थी। मैंने ऐसे ऐसे मिरेकल देखे, उसमें से 1-2 ही बताऊंगा मैं क्योंकि समय का अभाव है। एक महिला जो व्हील चेयर पे आती थी, पूरी पैरालाइज थी। बाबा आते थे, उनको देख करके चले जाते थे। एक दिन बाबा आए, बाबा ने उनसे कहा गेट अप गो। बाबा का गो का मतलब है कि जाओ इंटरव्यू के रूम में। वो महिला उठी, लड़खड़ाई और दौड़कर चली गई। वो महिला जो कि पैरालाइज थी, व्हील चेयर पे आती थी, उनको मैंने अपनी आंखों से दौड़कर जाते हुए देखा। भाइयों, पादुका पूजा के टाइम में हम भी गए थे अपनी पादुका लेकर।
वहां पर बाबा आए और एक छोटे से तसले के अंदर चावल थे, वो लेकर के एक सेवा दल बाबा के साथ साथ चल रहा था। बाबा वो अक्षत्र लेते थे और इस तरह से डालते जाते थे। अब वो छोटा सा तसला था, उसके अक्षत्र उन्होंने मेरे ख्याल से पूरे हॉल में डाले होंगे, क्योंकि मैंने वो तसला चेंज होता हुआ नहीं देखा। बाद में जब बाबा चले गए दर्शन देकर, तो फिर वो चावल बटोरा गया। न जाने कितनी बोरी भर के चावल था। ये चावल कहां से आया आप लोग सोच सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे मिरेकल्स बहुत सारे हुए। भाई और बहनों, खुशी की उम्र कम होती है। हम लोग अभी तक बाबा की बॉम्बे विजिट और इन सब चीजों से उभरे नहीं थे कि 2011 आ गया और बाबा ने महासमाधि लेना डिसाइड कर लिया। हम लोगों को यहाँ सडनली खबर मिली कि बाबा बहुत बीमार हैं और एडमिट हो गए हैं, पर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि बाबा शरीर छोड़ सकते हैं। हम लोगों को सबको मालूम था कि बाबा ने एक निश्चित समय दिया हुआ है जब कि वो समाधि लेंगे, तो इतनी जल्दी जाने का सवाल ही नहीं है। इसलिए हमसे कोई भी पूछता तो हम बोलते थे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोई चमत्कार है बाबा का। लेकिन द इनएविटेबल हैपेंड। बाबा ने समाधि ली। क्यों ली, कैसे ली, ये सिर्फ वो जानते हैं, लेकिन समाधि उन्होंने ली। तब तक भाइयों और बहनों, मुझे बाबा के साकार रूप से बहुत प्यार हो गया था। मुझे बाबा तब तक अंदर महसूस कर पाऊं ऐसी स्थिति मेरी नहीं थी। मैं उनको सिर्फ बाहरी रूप में जानता था और उनके साकार के जाने का मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दर्द हुआ। उस वक्त मेरे अंदर के कवि ने कुछ लाइनें लिखी, कुछ पंक्तियां लिखी, जो मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं बोला हूं, पर आज मैं सबके साथ साझा करता हूं। शीर्षक है कि साईं एक बार फिर आ जाओ। साईं एक बार फिर आ जाओ। वो कहते हैं आसपास है तू। साईं वो कहते हैं आसपास है तू, हर सांस के एहसास में तू, आगे भी तू, पीछे भी तू, ऊपर भी तू, नीचे भी तू, पर फिर भी ये दिल मचलता है, तेरे साकार को तरसता है। पर फिर भी ये दिल मचलता है, तेरे साकार को तरसता है। वो तेरा साईं कुलवंत हॉल में आना। साईं वो तेरा साईं कुलवंत हॉल में आना, हर आंख का खुशी से उठ जाना। किसी को विभूति देना तो किसी का पत्र लेना, किसी को पाद नमस्कार तो किसी को कोई प्रसाद देना, रुमाल से मुंह पोंछना, बालों की लटें हटाना, उंगली घुमाकर तकदीरें बदलना। किस तरह ये सब भुलाऊं साईं, किस तरह ये सब भुलाऊं। निराकार में ये सब कहां से पाऊं, निराकार में ये सब कहां से पाऊं। हम सब भक्तों की है ये विनती, मान जाओ एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर आ जाओ। भाई और बहनों, काश ऐसा हो सकता कि हम सब की विनती सुनकर बाबा एक बार फिर आ जाते। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब बाबा का जब शारीरिक रूप नहीं है, तो लोगों को बाबा का एहसास, बाबा का आभास और भी ज्यादा हो रहा है। खासतौर से वो जिन्होंने कि बाबा को कभी देखा नहीं, उनको ये महसूस हो रहा है कि ये अवतार आए और चले गए, और वो बाबा, उनके साथ बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे हैं कि वो बाबा को अपने अंदर बहुत नजदीक से महसूस करते हैं। बाबा के पास आकर मैंने क्या सीखा। मैं एक रिचुअलिस्टिक और रिलीजियस परिवार से हूं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं मालूम था। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ये यहां आकर जाना। सही इबादत क्या होती है ये यहां आकर जाना। 4 लाइनें अर्पित हैं उसके लिए कि तेरे पास बैठना भी इबादत है,
साईं, तेरे पास बैठना भी इबादत है, तुझे दूर से देखना भी इबादत है, तुझे दूर से देखना भी इबादत है। न माला न मंत्र, न पूजा न सजदा, न माला न मंत्र, न पूजा न सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना ही इबादत है, तुझे हर घड़ी सोचना ही इबादत है। तो ये स्पिरिचुअलिटी की सही परिभाषा है। जिस वक्त श्री कृष्ण जी ये दुनिया छोड़ना चाहते थे, तो उद्धव जी ने उनसे पूछा कि आपको पाने का क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा कि दो तरीके हैं सिर्फ, एक मुझसे अनुराग और दूसरा जीवन से बैराग। बाबा ने क्या बताया, बाबा का क्या था, वो प्रैक्टिकल थे, उनकी टीचिंग्स भी प्रैक्टिकल है। उन्होंने मॉडिफाई किया था इन्हीं चीजों को। उन्होंने जीवन से बैराग मतलब डिटैचमेंट, उन्होंने डिटैचमेंट के बजाय सीलिंग ऑन डिजायर्स कहा, क्योंकि वो जानते थे कि टोटल डिटैचमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए उन्होंने सीलिंग ऑन डिजायर्स कहा, सीलिंग ऑन डिजायर्स एंड टर्न अटैचमेंट टुवर्ड्स गॉड। अगर आप ये दो चीजें कर लें तो भगवान मिल जाएंगे आपको। और हमें क्या करना है, ये जीवन हमने पाया है सिर्फ मोक्ष पाने के लिए, और अगर ये दो चीजें हम कर पाए तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा तो मुझसे कई लोगों ने पूछा कि अब बाबा किसको गद्दी देके जा रहे हैं। मैंने कहा भाई, ये उस तरह के गुरु नहीं है जो अपनी गद्दी पीछे से किसी और को देके जाते हैं, ये तो अवतार है। और अवतार जो हैं वो कभी किसी को गद्दी नहीं देते, उन्होंने एक संकल्प लिया है, एक दिशा निर्धारित की है, उस दिशा के अनुसार एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की है जिसको उन्होंने अपना नाम दिया है श्री सत्य साई सेवा संगठन, एक ट्रस्ट बनाया है श्री सत्य साई ट्रस्ट। ये दोनों मिलकर बाबा की ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। और भाइयों बहनों, ये सबूत है आज कि नए नए लोग रोज लाखों की तादाद में पुट्टपर्थी में आ रहे हैं, लाखों की तादाद में हमारे सेंटर्स में आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि अब वो जागरूकता आ रही है कि जैसे राम आए, जैसे कृष्ण आए, ऐसे ही साईं अवतार भी आया और चला गया। तो ये अनुभूति आज जब लोगों में है तो मैं अपने आप को बहुत धन्य पाता हूं कि अनुभूति मुझे भी हुई है और आप लोगों को भी हुई है। मैं दुनिया में बहुत जगह घूमा हूं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सत्य साईं सेवा संगठन जैसी दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये मैं क्यों कहता हूं, उसका भी कारण है। इस ऑर्गेनाइजेशन में 3 विंग्स हैं, स्पिरिचुअल विंग, एजुकेशनल विंग और सर्विस विंग। और इन तीनों विंग्स को मिलाकर एक गुलदस्ता है जिसमें से जो फूल चाहिए आपको चुन लीजिए, जो आप कर सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार वो आप करिए। आप सेवा करना चाहते हैं, ऑप्शंस हैं। आप साधना करना चाहते हैं, ऑप्शंस हैं। आप पढ़ाना चाहते हैं, आप एजुकेशन पाना चाहते हैं, एजुकेशन देना चाहते हैं बच्चों को, वो ऑप्शंस। इतना सारे ऑप्शंस कहीं पर भी नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर मुझसे कहा करते थे कि बेटा, अगर तुम्हें मालूम है कि मंजिल बहुत खूबसूरत है और मंजिल कहाँ है ये भी तुम्हें मालूम है, तो रास्ते की परवाह मत करना, बस चल दो। तो भाइयों और बहनों, हमें तो रास्ता मालूम है, हमें भगवान को पाना है, वो हमारी मंजिल है। उनको पाने के लिए उन्होंने ही इतने सारे रास्ते बताए। चुन लीजिए जो आपकी समर्थ हो, जो आपकी इच्छा हो, और पहुंच जाएंगे उनके पास, इस बात का विश्वास रखिए। मैंने भी भजन से जर्नी शुरू की थी, करते करते मैंने ग्राम सेवा की, मैंने प्रशांति सेवा की। ये उनकी कृपा थी कि उन्होंने इस तरह का दर्शन दिया मेरे को कि मैं किस्म किस्म के उनके ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के साथ में जुड़ सकूं। और मैंने क्या पाया ये मैं बताता हूं आपको आज। मैंने महसूस किया है कि मुझ में डिटैचमेंट आया है, मुझ में मेरा गुस्सा कम हुआ है, अहंकार की कमी आई है,
ये सेल्फ इवैल्यूएशन जो करते हैं ना हम लोग रात को बैठ करके, जैसा हमको बताया हुआ है कि एक सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए, रात को बैठ करके हर किसी को जानना चाहिए कि आज मैंने दिन में क्या हासिल किया। जो बाबा ने 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट जो हम लोगों को दिए हैं, उसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि उनसे हमारे जीवन में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो इवैल्यूएशन मैंने अपने आप पे मैं करता हूँ, रेगुलरली करता हूँ, और मैंने ये पाया है कि उससे मुझे काफी कुछ अंतर आया है। मुझे जैसा मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या अंतर है, ये मैंने यहां आकर जाना। बाबा ने हमेशा कहा है कि यू डू माई वर्क, आई विल डू योर वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई। जैसा भाई ने बताया कि मैं स्टेट प्रेसिडेंट था, अब मेरे को जोनल प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये उनकी कृपा है कि मुझे नए नए रोल दे रहे हैं, नई नई चीजें सिखा रहे हैं, जीवन का एक नया दायरा बना रहे हैं। अभी भी मेरा बिजनेस गल्फ के साथ है, जिसमें फ्राइडे छुट्टी होती है, संडे का दिन वर्किंग डे होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में भी संडे का दिन सबसे बिजी डे होता है, क्योंकि उसी दिन सबको मौका मिलता है साधना करने का। लेकिन आज तक कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से मेरे बिजनेस को कोई अंतर पड़ा। ये उनका जो अश्योरेंस है वो मेरे जीवन में सार्थक हुआ है। मैं पहले तुकबंदी किया करता था, कविताएं थोड़ी बहुत लिखता था। अब जो भी लिखता हूं वो बाबा के चरणों में लिखता हूं, बहुत थोड़ी सी लिखता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि सारी साधना पर साईं अर्थ, सारी साधना पर साईं अर्थ, और अगर साईं नहीं तो सब व्यर्थ, अगर साईं नहीं तो सब व्यर्थ। मैंने रियलाइज किया भाइयों बहनों कि साईं से कीमती कोई जागीर नहीं, साईं से कीमती कोई जागीर नहीं, साईं से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं। कभी आप ध्यान लगाकर देखते रहिए उनकी तरफ, तो आपको महसूस होगा कि इनसे खूबसूरत इंसान तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं। तो साईं से कीमती कोई जागीर नहीं, साईं से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं, साईं यूं तो कच्चा धागा है मगर, साईं यूं तो कच्चा धागा है मगर, इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं, इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं। जहां साईं का जिक्र न हो, जहां साईं का जिक्र न हो, वो महफिल किस काम की। जहां साईं का जिक्र ना हो वो महफिल किस काम की। जो दिलों में फासले कम न करे, जो दिलों में फासले कम न करे, वो साधना किस काम की। यकीनन मोक्ष हमारी मंजिल है, यकीनन मोक्ष हमारी मंजिल है, अगर साईं हर सांस में नहीं तो ये जिंदगी किस काम की। अगर साईं हर सांस में नहीं तो ये जिंदगी किस काम की। भाइयों और बहनों, मैं घड़ी देख रहा हूं, समय मेरा पूरा हो गया। आखिर में 4 लाइनें बोलकर मैं अंत करूंगा कि जीवन मुकम्मल हो जाएगा, जीवन मुकम्मल हो जाएगा, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, मोक्ष का मार्ग खुल जाएगा, अगर सिर्फ एक काम हम कर पाए, अगर सिर्फ एक काम हम कर पाए कि स्वामी का संदेश घर घर में पहुंचा पाए, स्वामी का संदेश घर घर में पहुंचा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय साई राम। प्रशांत, यू आर ऑन म्यूट। Sairam sir, Sairam, thank you so much for this wonderful talk. और मैं भी थोड़ी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से थोड़ा हिंदी में आपको धन्यवाद कर सकूँ। भले ही मेरी हिंदी आपकी तरह इतनी अच्छी ना हो और इतनी शुद्ध ना हो, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सारे श्रोताओं की तरफ से और सारे भक्तों की तरफ से कि आपने हमारे बीच में जितने भी आपके सारे एक्सपीरियंसेस और जितने भी भगवान के मिरेकल्स
यहाँ पे आपने बताए है, जिनसे हम भगवान को याद कर सकते हैं, और भगवान के फिजिकल फॉर्म अभी पिछले 11 साल से हमारे बीच में ना होने के बाद भी हम लोग कौन सी साधनाएं और कौन सी परिस्थितियों के बीच में हम लोग उनको कैसे याद करें, हम उनका नामस्मरण कैसे करें, हम सेवा कैसे करें, ये सब हमारे साथ शेयर करने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. Thank you so much for this wonderful talk, and especially thank you for answering all the questions which were asked in the panel itself, which actually eased our task quite a lot. And there is one person who wants to ask a question. Sir, in case you want, could you please type your question over here so that I can ask it to sir? Thank you so much. So I guess speaker has answered all the questions, and do we have some more time, Siddharth Bhaiya? Do we have some more time for the questions, or should? Yeah, we have at least 15-20 minutes. If you can take up few questions, maybe uncle may like to answer in a different way than what he has explained. There's one question over how do you solve your problem during difficulties? Is there a meditation a good form of sadhana, and what is the right time to do that sadhana? I think what I have understood from Swami's teachings, that if your personal sadhana is strong, then he speaks through you and he tells you, he guides you. तो अगर आपकी पर्सनल साधना को आप इतना तेज कर सको, एक किसी उर्दू पोएट ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. You raise yourself so much that before next birth, God should be forced to ask you, what is your choice? तो अगर हम भगवान से कोई गाइडेंस सीख करें तो उसके लिए हमें पहले खुद साधना करना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा. मैंने जैसा भाई प्रशांत को बोला था कि मुझे इंटरव्यू भगवान ने कभी नहीं दिया जीवन में, लेकिन इंटरव्यू बहुत दिए, और शायद ये पर्सनल साधना से है. मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे मजाक में 2 लाइन बोले बाबूजी मैं आपको 2 लाइनें बोलती हूँ, और जरूर बोलिएगा कि बाल जाते गए और साईं आते गए. कि बाल जाते गए और साईं आते गए. तो ultimately it is the wisdom which comes by learning, by your own practicing his teachings. Practice his teachings in day-to-day life, realize him in day-to-day life, not necessary. जैसा कि मैंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि जीवन से बैराग, तो जीवन से बैराग is not possible, इसीलिए स्वामी ने उसको मॉडिफाई किया. Therefore, if we follow his teachings, they are the most practical teachings. और ये भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हर मौके पर हर चीज के अंदर हमको गाइडेंस दी है, और वो सब डॉक्यूमेंटेड है. उनकी वाहिनी ले लीजिए, उनकी जीवनी ले लीजिए, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है. तो अगर हम इसका उत्तर साईं लिटरेचर में ही खोजेंगे तो हमें मिलेगा. Sure. Have I answered your point? Yes, exactly. In fact, there are और भी बहुत सारे questions आ रहे हैं. In fact, if you can, take one by one. One question एक आया है कि in the midst of all sorts of classes and tuitions and distractions, how can today's children be inspired to join and continue in Bal Vikas? See, this is a question which is being asked to everybody these days, particularly in the South Bombay. There are a lot of distractions of children, and it is for the parents, and we have to do good parenting. हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यूज बाल विकास से मिलती है, मैं बताऊं आपको कि मेरी बिल्डिंग के अंदर ही एक मेरी ग्रैंड डॉटर की 7 की बच्ची है. वो लोग यूएस शिफ्ट हो गए हैं. उनकी मदर अभी हमको मिली थी.
तो वो बता रही थी उनके बच्चों ने बाल विकास किया, और बाल विकास में यहाँ पर मेरे ख्याल शायद 3-4 साल उन्होंने बाल विकास किया। तो वो कहने लगी कि मेरे बच्चों में जो भी वैल्यूज हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ बाल विकास की वजह से। Now these kind of stories have to be told to those people who are seeking this question, कि ऐसा नहीं है क्या जो बच्चे डिस्ट्रैक्शंस या एजुकेशन में बिजी रहते हैं वो पार्टीज नहीं अटेंड करते, क्या वो दूसरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते? तो आप बाल विकास को जब तक महत्व नहीं दोगे, जब तक कि पेरेंट्स बाल विकास के महत्व को नहीं समझेंगे और जब तक कि उसके बाल विकास को जीवन में नहीं इंक्लूड करेंगे, तब तक ये नहीं होने वाला। First, parents have to understand the value. They have to teach the children that as important as going to a party, as important as going to somewhere else, is Bal Vikas. And this is as important as any education. Sai Ram sir, thank you so much for this wonderful tip or wonderful, you can say, anecdote on parenting. So when it comes to that, especially in today's world, as you said, there is a lot of chaos all around. So how can we be loving without, say, having any detachment, or with having without having any attachment towards our actions or towards any deed which is done? So निस्वार्थ सेवा कैसे करें? See, once you start realizing God in the person to whom you are serving, then only the real service will come, and that service will tame your mind. Purpose of service is what? Purpose of service is not कि खाली हमने किसी को अन्नदान कर दिया, खाना खिला दिया. That is not the service. बाबा ने कभी भी उसको अन्नदान नहीं माना, बाबा ने उसको नारायण सेवा का नाम दिया. मतलब सामने वाले के अंदर के नारायण को पहचानो, उसकी सेवा कर रहे हो ऐसा मानते हुए उसको खाना खिलाओ. अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मन के अंदर एक भावना जागेगी, इक्वानिमिटी की भावना जागेगी आपके अंदर ये महसूस होगा आपको कि भगवान उसके अंदर भी वही है जो आपके अंदर है. Once you start realizing that, then you will become loving towards him. Why do you get angry to somebody? Why do you get angry on somebody? You get angry because you think that you are here and he is here. Isn't it? If you think both are equal, why is not there fight between, let's say, sister and sister, or between your friends? छोटी मोटी तो लड़ाई होती है, लेकिन गुस्सा तो नहीं आता ना आपको generally. So that will only happen once you start realizing God within. Once you start realizing God in the other person also. And that is the whole purpose of sadhana. Thank you so much, sir, for this beautiful anecdote on sadhana, which we should be carrying on our day-to-day life. So, sir, एक और सवाल आया है कि स्वामी के फिजिकल शरीर त्यागने के बाद आपके अनुभव में निराकार में साकार को कैसे देख पाते हैं, कि हम और क्या करें कि हम स्वामी को हमारे पास हर समय हर क्षण महसूस कर पाए? आपको उन्हें अपने अंदर ही महसूस करना पड़ेगा. जैसे मैंने बताया कि बाबा के जाने के बाद तो एकदम से अंधकार छा गया था. 2 साल तक ऐसा लगता था जैसे कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, सब खो गए हैं. यहाँ तक कि आप विश्वास करिए, जब भगवान बीमार थे तो उनकी ठीक होने की प्रार्थनाएं भगवान को ही की जा रही थी कि आप अपने आप को ठीक कर लीजिए. किसी को भी विश्वास नहीं था कि भगवान चले जाएंगे. इतना ज्यादा बाबा से लोग अटैच थे. और ऐसा भी मैंने सुना है कि बाबा ने शायद इसलिए शरीर जल्दी छोड़ दिया क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग जो हैं उनके फॉर्म से बहुत अटैच हो गए थे. लोग ये समझते थे कि बाबा वो 5 फुट 3 इंच की जो हस्ती है वही बाबा है, वही सत्य साईं बाबा है, जबकि हकीकत नहीं है. वो हकीकत ये है कि वो हमारे अंदर है. बाबा ने बराबर बोला कि माई एक्चुअल रेजिडेंस इज योर हार्ट. I live in the heart of my devotees. This is what Baba has always said. तो अगर हम उनको अपने अंदर महसूस करें तो ऑब्वियस है कि हमको उनके साकार से, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस किया, नहीं तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उनके फॉर्म से दूर जाना. इसीलिए मैंने वो कविता जो सुनाई, उसका मेन मकसद यही था कि बाबा एक बार फिर आ जाओ. मैं उसको ही पकड़ के खींचना चाहता था कि बाबा फिर चले आओ, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ. बाद में रियलाइज किया, करे वो तो अंदर ही बैठे हैं भाई, किसको बुला रहे हो आप?
जो अंदर बैठे हैं उनको आप बाहर से कहां से बुला रहे हो? और जब तक कि हम ये महसूस नहीं करेंगे तब तक हमको निकलना ही पड़ेगा, हमको निराकार में ही साकार को ढूंढना पड़ेगा। धन्यवाद सर इतने प्यारे शब्दों के लिए। और अगला एक सवाल है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर न्यू टू स्वामी's fold and those who have not seen Swami physically or not have had extremely close interactions with Swami as you have had. So how do people like them or people like us develop that kind of strong faith in Bhagwan? Well, I think if they listen to my talk once again, I have not had any direct interaction with Bhagwan. बाबा से मेरा कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, कभी बाबा से मैंने डायरेक्टली बात नहीं की। जो कुछ भी हुआ वो इंटरव्यू में हुआ, जो कुछ भी हुआ वो सपनों में हुआ, जो कुछ भी हुआ उन्होंने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे पूरी हस्ती को एक शिल्पी की भांति उन्होंने कार्व आउट किया है, एक स्कल्पचर की तरह से उन्होंने मेरी पूरी हस्ती को कार्व आउट किया है। और ये हम सबके साथ होता है। अगर हम सब खाली उनको अपने अंदर रियलाइज करने की चेष्टा करेंगे तो भाई आज आप सत्य साईं बाबा को मत मानिए, पर किसी के अंदर तो आस्था है आपको। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ मुझे मानो। उन्होंने कहा कि अगर तुम क्रिश्चियन हो तो अच्छे क्रिश्चियन बन जाओ, अगर तुम हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बनो, अगर तुम मुस्लिम हो तो अच्छे मुस्लिम बनो। तो उन्होंने कभी भी किसी भी आस्था के बारे में नहीं कहा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सत्य साईं बाबा को ही माने। आप अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति कीजिए, पर इतनी कीजिए कि उनको अपने अंदर महसूस कीजिए। ये रिचुअल्स से निकलिए। मेरे हिसाब से हम लोग जो रिचुअल्स में फंस जाते हैं वो हमको थोड़ा सा दूर ले जाता है। इनर रियलाइजेशन बहुत समय बाद आता है, जो मेरे साथ हुआ। मैं शुरू के अंदर मेरे लिए सोचना बड़ा नामुमकिन था कि मैं रोज मूर्ति की का श्रृंगार नहीं करूं, कि मैं रोज मंदिर नहीं जाऊं, कि रोज में जाकर के माथा नहीं टेक। ये मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल था। जब तक कि मैं ग्वालियर में था, हर दिन नियम से मैं मंदिर जाता था, हर दिन नियम से मैं पूजा करता था। पूजा मैं आज भी करता हूं, पर आज मैं साधना के रूप में करता हूं उसे। आज मैं भगवान की भक्ति को अपने अंदर महसूस करके करता हूं। और ये एक बार आप करना शुरू करेंगे, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, तो उनको भी वैसा एहसास होगा जैसा मेरे को हुआ। ऐसा मेरा मानना है। कोशिश करके देखिए। धन्यवाद सर। सर एक और सवाल आया है कि जैसे आपने बोला कि आप साधना करते हैं भगवान की अपने भीतर महसूस करके, तो अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो भगवान के साथ महासमाधि के बाद जो हुआ हो, जैसे आपने बोला था भगवान को कि आप स्वयं चले आइए, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जहाँ पे भगवान ने आपको आपके प्रेयर्स को गिव अप करके वो खुद आपके लाइफ में, आपके एक्सपीरियंसेस में महासमाधि के बाद किसी भी रूप में आए हो? अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो तो क्या आप प्लीज शेयर करेंगे? नहीं, बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मतलब मैं अब महसूस कर रहा हूं। मैंने शुरू में तुमको बोल दिया था कि नहीं, मेरे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है। लेकिन अब जब मैंने अपनी किताब पलटी, अपने जीवन को मैंने उलट के देखा, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे साथ मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस उनके निराकार के हुए हैं, मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस भगवान के जाने के बाद हुए हैं। अब ऐसे ले लो कि मेरे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं, ये सब भगवान के जाने के बाद ही आई। बाबा जब आए थे उस वक्त तक मैं खाली जोनल कोऑर्डिनेटर था। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, उसके बाद मैं स्टेट प्रेसिडेंट बना, और अब मेरे को जोनल कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। तो ये जो उन्होंने टच किया मेरे को, ये कहीं ना कहीं, और मैंने इस चीज को, जब मेरे को एक्सेप्ट करना था रोल, तो मैं ऑब्वियसली भगवान से पूछता हूँ। मेरे भी अपने तरीके हैं, मैं उनको रियलाइज करके प्रार्थना करता हूँ कि मुझे गाइड करें, और उन्होंने मुझे गाइड किया। वो फीलिंग अंदर से आती है, वो अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि हाँ ये करो, मानो, इसको मान जाओ। तो वो आपको अपने अंदर की आवाज को और बुलंद करना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जबकि आप उसकी साधना करें अंदर जो आपके बैठे। धन्यवाद सर। द लास्ट question just before we take leave. So during these times
how should we connect Swami within us? So are there any steps or any particular set of sadhanas जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं ताकि हम लोग स्वामी को महसूस कर सके हर क्षण हमारे बीच में? अब कैसे उनको महसूस करना है ये हर किसी के साथ अलग अलग होगा। आप काम में उनको अपने साथ महसूस करिए, आप जब ऑफिस जाते हैं तो उनको अपने साथ लेके जाइए, जब खाना खाते हैं तो हम लोग ब्रह्मार्पण करते ही करते हैं। हर समय उनको याद करने का एक बहाना बनाइए, और वो कैसे होगा ये हर किसी के केस में अलग होगा। तो आप खुद ढूंढिए। साई लिटरेचर एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। आप रोज अगर साई लिटरेचर का रेगुलरली पाठ करेंगे तो आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी, लोगों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो जिनके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, और इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप पढ़ेंगे कि बाबा ने जो जो कहा हुआ है वो लोगों ने अपने जीवन में उतारा है और उसका क्या असर हुआ है। ये जितने भी मिरेकल्स हैं इन सबको पढ़िए, रोज पढ़िए। और साधना के तौर पे आप अष्टोत्तर कर सकते हैं रोज। आप जो भी साधना पढ़े। कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो रोज हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं, तो आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम करिए। अगर आप वेदा का पाठ करते हैं तो आप वेद पढ़िए। बाबा ने कहा हुआ है कि आप रुद्र का पाठ करें तो वो करिए। जो आपको आपके मन को अपील करे वो करिए आप। और सुबह सवेरे उठ करके आप साधना करेंगे तो आपका पूरा दिन जो है उस फीलिंग के साथ में रहेगा। ट्राई करके देखिए। धन्यवाद सर. Thank you so much for all these experiences and especially sharing with us how we should connect to Bhagwan through various forms. Either it can be through personal sadhana, it can be through seva, it can be through reading Swami's literature or reading any literature which is spiritual in nature, and how the good innate, how we should try to get out those innate good qualities in ourselves in order to reach Bhagwan so that we can experience him with us, around us, and within us at all times. And most important thing, thank you for reiterating the message which Bhagwan has given regarding that his life is his message to all of us, and that we should imbibe it throughout our lives at every stage. Thank you so much, sir, for this wonderful talk. And it was great to have you for this Samarpan in this auspicious month of Ashadi Ekadashi and Guru Purnima. It was an icing on the cake. Thank you, sir. Sayonara. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Prashant, we can close with Samasta Loka 3 times and then close it. Sure, sure. We'll close it. Samasta. Om Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om शांति शांति शांति. जय बोलो भगवान श्री 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 सत्य साई बाबा जी की जय.